Electrolysis. ठीक है, so this is the sixth chapter of chemistry. Fourth chapter is left that we'll do afterwards. Okay, ये भी इतना बड़ा chapter नहीं है, we'll finish it off. And once we do this, then we'll focus on physics a little bit for some time. Okay. Now, what is the meaning of electrolysis? Okay, let us understand word by word. Electro का मतलब क्या होता है? The flow of electricity. Electro. ठीक है. And lysis का मतलब क्या होता है? Separation. तो अगर कोई भी मेरे पास एक चीज है, जैसे आई एम हैविंग वाटर, अगर मेरे पास H2SO4, any chemical if I have, and if in that chemical I am passing electricity, then what will happen is that electricity will cause the breaking down of the molecule. ओके तो H2O क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अलग अलग हो जाएगा. तो ये क्या हो गया? ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. ओके, लाइसिस मीन सेपरेशन, इलेक्ट्रो मीन्स सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इलेक्ट्रोलाइसिस ये जो है ये आगे भी बहुत सारे कंसेप्ट में इस्तेमाल होता है. सो विल अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल ऑफ इट. मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर एलॉयज, ठीक है, ये हम लोग जब allow an electric current to pass through them when without undergoing any chemical change. So basically the meaning is that ke metals are very good conductors of electricity, most of the metals. Okay, some metals definitely are not good conductors, लेकिन generally अगर मैं बोलूँगा एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, they are good conductors of electricity. Non-metals like sulfur and phosphorus do not conduct electricity except graphite. Graphite is a very good conductor of electricity. In fact बहुत सारे सेल के अंदर अपने को ग्राफाइट मिलता है. ठीक है. Therefore metals alloys are called conductors and non-metals are called as insulator. They are bad conductor, लेकिन bad conductor को हम लोगों ने अलग से नाम देके बोल दिया. हम लोगों ने क्या बोले? insulator. So good conductors are called as conductors and bad conductors are called as insulators. So metals are conductors and non-metals are insulators. Okay, chemical compound behave differently when electric current is passed through them. Okay, अगर suppose for example अगर हम कोई chemical से electric current pass करेंगे तो उनका behavior will change a little bit. Okay, the chemical property will change a little bit. Okay, some compound conduct electricity in aqueous and some in molten. Now you have to understand what is the meaning of aqueous and what is the meaning of molten. Now suppose if I am having salt को मैंने mix किया पानी के अंदर, water, H2O. So water is what? It is a universal solvent, है ना. तो water क्या करेगा? वाटर NaCl को अलग अलग कर देगा. सो इट विल प्रोड्यूस Na ions and Cl ions, है ना, सोडियम एंड क्लोरीन आयंस, बिकॉज ऑफ विच दीज आयंस विल नाउ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो देयरफॉर आई कैन से कि ये चीज NaCl जो नॉर्मल सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मैंने जैसे ही उसको पानी में मिक्स किया वैसे ही नाउ इट इज बिहेविंग एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और फिर मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है? मोल्टन स्टेट का मतलब होता है, ये हो गया एक्वा स्टेट. एक्वस मतलब एक्वा, mixed in water. For example, NaCl mixed in water. Then we are having molten state. Molten state का मतलब पता है क्या होता है? Molten state मतलब I've पिघला दिया मैंने उसको, molten. Okay, ठीक है. So therefore we can have a chemical which in aqueous state or in molten state can conduct electricity. Okay. तो ऐसे टाइप का जो केमिकल है जो सॉलिड स्टेट में पास नहीं कर रहा लेकिन मोल्टन स्टेट में और एक्वा स्टेट में पास कर रहा है, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है? व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म इट विल इमीडिएटली स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड दोज व्हिच डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी दे विल बी कॉल्ड एज non-electrolyte, as simple as that. Okay, a chemical decomposition of a chemical compound can be brought about by using electric current. Such a chemical process is called as electrolysis. So chemical decomposition, a molecule breaking down into constituent elements, that is called as decomposition. So when we pass electricity through a particular element, what happens is the breaking down of that molecule. That means it is chemical decomposition. ठीक है. अब अपने को ये बताया है कि कैसे कॉपर वायर और कॉपर सल्फेट दोनों के मेटेलिक कंडक्टर में डिफरेंस क्या है. ओके, नाउ इन दिस केस इफ आई स्टडी कॉपर वायर एंड कॉपर सल्फेट, कॉपर वायर इज मेटेलिक फॉर्म. हमारा जो नॉर्मल जो कॉपर वायर होता है, हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक में हमारे घरों में हम लोग जो वायर यूज करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कॉपर वायर होता है. ठीक है. और इफ यू टेक कॉपर सल्फेट एंड इफ यू मिक्स इट इन वाटर, एक्वस कॉपर सल्फेट, so that will produce copper ion or sulfate ion. Copper ion is positive, sulfate ion is negative. हमेशा metal positive ion बनाएगा. तो metal यहाँ पे क्या है? copper है तो it will make positive ion and sulfate will make negative ion, and that will lead to the transfer of electricity. Okay, तो copper एक ऐसा material है जो solid form में भी metallic form में भी electricity conduct कर रहा है और aqueous form में भी mixed form में भी electricity conduct कर रहा है. So what will be the change of behavior? In solid form, the flow of current consists of a single stream of electrons flowing from negative pole to the positive pole.
ओके तो एक वायर है, नेगेटिव पोल से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और पॉजिटिव पोल तक का ट्रैवल कर रहे हैं. फ्लो ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रीम्स. ओके यहाँ पे Cu प्लस will move towards the negative electrode. Sulfate, which is minus negative, will move towards the positive electrode. So we are having two streams, one of the positive ion and other of the negative ions, and hence this flow of anion and cation are completely independent of each other. Okay, CuSO4 एक बार जब मैं पानी में dissolve करूंगा ना, तो CuSO4 will become completely separate. Okay, so they are not dependent on each other. तो उसकी वजह से we can have two streams. Metals both in solid and liquid state are good conductor. Okay, तो अगर मैं CO को मोल्टन भी अगर कर दूंगा, लिक्विड भी अगर कर दूंगा तो भी गुड कंडक्टर है. इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशंस. ओके, no change of form or composition occurs during condition of electricity. This is a physical process. Okay, अगर तुम्हारे पास एक वायर है, तुम उस वायर को 1 साल 2 साल भी यूज करो, वायर में कुछ भी फिजिकल चेंज नहीं आएगा, ना वो एक्सपांड होगा, ना वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना उसका वजन बढ़ेगा, ना उसका वजन कम होगा. So if you take a metallic wire, the physical composition of that particular wire will remain the same. Now new products are formed at the electrodes. यहाँ पे अगर हम लोग ये करेंगे, क्या बोलते हैं, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे new materials are being formed. Copper, which is in ionic form in the solution, will absorb electron and it will become normal copper. सल्फेट भी वहाँ पे नॉर्मल सल्फेट बन जाएगा. तो कॉपर का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, नॉर्मल मेटल कॉपर का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा. तो यहाँ पर केमिकल चेंज इज ऑल्सो देयर. ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देयर इज ओनली फिजिकल चेंज. ओके, सो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? दोस केमिकल्स व्हिच व्हेन मिक्स्ड इन वाटर और व्हेन कन्वर्टेड इनटू मोल्टन फॉर्म कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स. दे आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, मतलब उन लोग में आयोनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है. ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलर कोवलेंट कंपाउंड. ओके, तो उसको पोलर भी बोलते हैं क्यों? वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो देयर आर टू सेपरेट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, as the name suggests, strong electrolyte will conduct a very high amount of electricity and weak electrolyte will conduct a very low amount of electricity. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम लोग देखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, वीक भी नहीं है, वो कंडक्ट करेगा ही नहीं. Suppose you have something, you mix it in water, and even after mixing it in water, it is not forming any kind of a chemical conduction, electricity conduction. That is a non-electrolyte. जैसे अगर तुम मिट्टी ले लोगे, तो मिट्टी को पानी में कितना भी डिजोल्व कर लो, वो बाद में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं. ठीक है, तुम अगर कोई ऐसे सब्सटेंस ले लोगे जो कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसमें नहीं है, आयोनिक बॉन्ड जिसमें नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड वाला कोई भी मटेरियल तुम पानी में मिक्स करोगे तो फिर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा. इट विल नॉट बी कंडक्टिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी. Okay, non-electrolytes do not have any ion. Even in solution, they contains only molecules. Okay. Okay, fine. So they have given separation of strong and weak electrolytes. Okay. Strong electrolyte का मतलब क्या होता है? It will conduct a very large amount of electricity. You know, as the name suggests, weak electrolyte will conduct a very low amount of electricity. Okay. Strong electrolyte are good conductor. Weak electrolyte are not insulators. They are not zero conductor, but they are poor conductor. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अपने को हाई करंट मिलेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अपने को लो करंट मिलेगा. These are almost completely dissociated in fused or aqueous form. अच्छा, dissociated like NaCl. NaCl अगर मैं पानी में मिक्स करूंगा तो immediately dissociate होके Na plus और Cl minus आयन फॉर्म हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया. बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं शुगर को पानी में डालूंगा तो शुगर में तो कोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड नहीं है, शुगर में तो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है. तो शुगर पानी में मिक्स करने के बाद आयन फॉर्म नहीं होगा, तो शुगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होता. डिसोसिएट मतलब एक मॉलिक्यूल टूट के एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पार्ट में अलग अलग हो जाना. ओके, नाउ दीस सॉल्यूशंस कंटेन फ्री मोबाइल आयंस इलेक्ट्रोलाइट में लार्ज नंबर, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में दे कंटेन अ वेरी स्मॉल नंबर एज आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स. ओके, तो मॉलिक्यूल्स भी है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयंस भी है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अलाउज अ बल्ब टू गो ब्राइटली, क्योंकि ज़्यादा करंट रहेगा तो बल्ब बहुत ब्राइटली ग्लो होगा. एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा करंट नहीं है तो इट विल ग्लो वेरी डिम. Example: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. They are very strong electrolytes. NaOH, KOH, NaCl. They are very strong electrolytes. And examples of weak electrolyte is carbonic, acetic acid, calcium hydroxide, sodium bicarbonate.
ठीक है, ये सब जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ से अपन करंट पास नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या रहेगा, अल्कोहल, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब, केन शुगर। ठीक है, अगर तुम ग्लूकोज को पानी में मिक्स कर दोगे तो ग्लूकोज विल नॉट बी कंडक्टिंग एनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा ही नहीं। वहाँ पे अपन बल्ब लगाएंगे तो बल्ब ना ब्राइट रहेगा ना डिम रहेगा, बल्ब में कुछ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा ही नहीं। ओके, शुगर केन, केन शुगर, डाइसल्फाइड, ये सब दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देन वी आर हैविंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या होता है? रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई टेल यू अगेन, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। अब दोनों का डेफिनेशन भी उल्टा है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल जो है वो इसका उल्टा है, इट विल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अंडरस्टूड? So therefore, now first we'll study electrolytic cell. A non-conducting vessel in which electrolysis is carried out is called as electrolytic cell or voltmeter. तो यहाँ पे करंट जो है वो इसके अंदर ही मतलब पास हो रहा है, यहाँ से सेल से हम लोग बाहर नहीं निकाल रहे। ठीक है, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग वेसल है। वेसल हम लोग ने ऐसी चीज का बनाया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो सके, क्योंकि जो वेसल मतलब कंटेनर जो है ना, अगर वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी वही अब्सॉर्ब कर लेगा और इट विल स्टार्ट सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू द सराउंडिंग। वी डोंट वांट इलेक्ट्रिसिटी टू द सराउंडिंग, वी जस्ट वांट इलेक्ट्रिसिटी टू पास फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ओके, दैट्स इट। सो वी हैव मेड द वेसल ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर की वजह से यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टामीटर। यहाँ पे अलग अलग नाम दिया हुआ है इसका। एंड इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा इसके नीचे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल दिया है। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक का उल्टा। इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे मोबाइल में जो बैटरी लगा हुआ है वो बैटरी के अंदर केमिकल है, उस केमिकल के वजह से हमारे बैटरी से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ओके, तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो बैटरी है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हेंस इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सिंपल वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल आर द एग्जांपल्स। ओके, इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है? ये देखो यहाँ पर देखो कैथोड एनोड लगा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड। दे आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल चाहिए। तो पॉजिटिव वाला जो है वो होता है एनोड और नेगेटिव वाला जो होता है वो होता है कैथोड। और ये पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रिसिटी पूरा करंट फ्लो होता है। तुम कोई भी बैटरी लेकर आओ, चाहे वो पेंसिल बैटरी हो या फिर गाड़ी में लगने वाला बैटरी हो या फिर तुम्हारे मोबाइल में जो बैटरी हो, एवरी बैटरी हैज टू टर्मिनल्स, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। पॉजिटिव वन इज एनोड एंड नेगेटिव वन इज कैथोड। ओके, so anode is positive and cathode is negative. Okay, when current is turned on, the cathode becomes the negative electrode by which electrons enter the electrolyte, and anode becomes the positive electrode by which electrons leave the electrolyte. Okay, तो अपना ये क्या बोलते हैं, कैथोड जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन विल बी सप्लाइड टू द सोल्यूशन। ओके, तो कैथोड इज सप्लाइंग टू द इलेक्ट्रॉन टू द सोल्यूशन एंड एनोड बन जाएगा पॉजिटिव। उसकी वजह से क्या है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना, तो एनोड क्या करेगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन पूरा पास होके सर्किट से बाहर होके जाएगा। ठीक है, फाइन। देन वी आर हैविंग एनोड और कैथोड के बीच में डिफरेंशिएशन। इट इज द पॉजिटिव, इट इज द नेगेटिव। एनायन जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ मूव होगा, और कैटायन जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ मूव होगा। ठीक है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं कम, एंड इट इज रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड क्योंकि रिड्यूसिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ज्यादा। ओके, सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आई कैन से कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। You must remember that anode is the oxidizing electrode and cathode is the reducing electrode. Okay. Next we are having ions. Ions का मतलब क्या होता है? NaCl ions होता है, Na is positive, Cl is negative. So therefore, whenever any molecule dissociates in water, then after dissociation, what will happen is that one ion will be gaining the electron, one ion will be losing the electron. The one which gains will become negative, and one which loses will become positive. Okay. So hence we are having cations and anions. Cations are positively charged, anions are negatively charged. ठीक है, कैटायन मूव होता है कैथोड की तरफ, एनायन मूव होता है एनोड की तरफ। कैटायन क्योंकि पॉजिटिव है तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनायन क्योंकि नेगेटिव है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
they have given certain example of positive and negative ions. Okay, fine. Next topic is oxidation. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? तुम ये याद रखो, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या रहेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉसेस लिखा हुआ है. अ प्रोसेस इन व्हिच एन इलेक्ट्रॉन और एन आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, लाइक जिंक लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स Zn2+. सोडियम लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस में माइनस लिखते हैं और ऐड में प्लस लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने लॉस्ट में माइनस लिखे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na+ हो गया, तो यहाँ पर अलग अलग आयन्स फॉर्म हो गए. ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ केमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो अगर हम लोग कोई भी चीज पे अगर हम लोग ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं या तो फिर हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, any reaction in which oxygen is added or hydrogen is removed, that reaction is called as oxidation reaction. So this is the example of addition of oxygen. Okay, यहाँ पर एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होके ऑक्साइड बन रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे वॉट एवर केमिकल लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्रेजेंट, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और H सल्फार अलग चला गया. ठीक है, सो वी कैन से that these two reactions where oxygen is added or hydrogen is removed, both of these reactions are basically oxidation reaction. Okay, because we have studied over here that oxidizing is defined as a chemical process in which involves addition of oxygen or removal of hydrogen. ठीक है, and next we'll study oxidizing agent. अब कोई ऐसा चीज जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. लाइक आई एम हैविंग अ केमिकल, that chemical will oxidize anything which it comes in contact with, then my chemical will be an oxidizing agent. An oxidizing agent is one that oxidizes their substances by either accepting electron or by providing oxygen or an electronegative ion. ठीक है, it oxidizes other substances. How will it oxidize? It will take away the electron from them or it will provide oxygen. ठीक, ऑक्सीजन देगा या तो फिर कुछ दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन देगा. ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमें देखो अलग अलग एग्जांपल दिया है. सॉलिड में मैंगनीज डाइऑक्साइड, रेड लेड डाइऑक्साइड वगैरह, लिक्विड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये वो, गैसियस में ऑक्सीजन, ओजोन वगैरह. ठीक है, फिर क्या आता है? रिडक्शन. रिडक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. सो इन दिस केस विल बी हैविंग गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो कॉपर विल गेन इलेक्ट्रॉन, विल बिकम कॉपर नॉर्मल एटम. iron ion will gain electron, it will become 3+ से 2+, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज तो वो पॉजिटिव को बैलेंस कर दिया. ठीक है, अगर यहाँ पे 2+ है और 2 नेगेटिव है तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव will cancel out each other, this SN will be completely neutral. ठीक है, so this is called as reduction. Or I can say reduction is removal of oxygen and addition of hydrogen. This is completely opposite of the definition of this thing that we have done, oxidation that we have done. ठीक है, so therefore removal of oxygen और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, डिफरेंट एग्जांपल जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं या फिर हाइड्रोजन को एड अप कर रहे हैं. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, कोई भी केमिकल जो दूसरे केमिकल जो उसके कांटेक्ट पे आ रहा है उसको वो रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये केमिकल सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, तो मेरा ये केमिकल क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट. दिस इज द सेम डेफिनेशन दैट वी हैव डन इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, या okay, so reducing agent क्या रहेगा? reducing agent will be something which converts which reduces everything which it comes in contact with. okay, तो कैसे करेगा वो? either it will add hydrogen, और वहां पे क्या था, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन को ऐड करेगा ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा उसका उल्टा, it will add either hydrogen or electropositive ion. ठीक है, और removing ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन को रिमूव करना, दोनों का मतलब एक ही होता है. यू प्रोवाइड हाइड्रोजन और यू रिमूव ऑक्सीजन, इट मींस वन एंड द सेम थिंग. और यू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और यू रिमूव एन इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, इट इज वन एंड द सेम थिंग. okay, so either by providing hydrogen or an electropositive ion, reduction happens, or I can say that by removing oxygen or an electronegative ion, reducing happens. That is one of the same thing. okay, we can go through the entire part. If you are having any doubt, then I can solve it out again, no problem. okay, I'm always there for solving doubts, so I know I'm going a little bit fast today,
but these topics are comparatively not that difficult. If you just go through once, you will understand. Okay, so examples क्या रहेगा? Solid में carbon ये reducing agent है, metal like zinc, aluminium, copper reducing agent है, liquids like hydrogen peroxide, gaseous like hydrogen sulfide, they are all reducing agent. मतलब जिस किसी के भी contact में आएगा वो क्या करेगा, वो उसको सामने वाले को reduce कर देगा. ठीक है? Now we'll go to a very important topic, Arrhenius theory. Okay, theory of electrolytic dissociation. Okay. Now, savant Arrhenius in the year 1887 gave ionic theory. उसने एक ionic theory present किया. Ionic theory about the chemicals which dissociate in water. Dissociation का मतलब क्या होता है? Dissociation means के break down हो जाना, है ना? तो उसने क्या कहा कि electrolyte on dissolving in water, it will give two ions, one cation and another anion. Cation will be positive, anion will be negative. ठीक है? Now, whether it doesn't matter whether it is cation or anion, all the ions they carry electric charge. Okay, हर ion के अंदर electric charge होता है. Positive वाले के अंदर positive charge, negative वाले के अंदर negative charge, and this charge का flow is responsible for the flow of electricity. Okay, the conductivity of electrolyte depends upon the concentration of ions in the solution. Okay, अगर concentration of the ions is high, conductivity will also be high. Concentration of the solution is low, conductivity will be also low. तो कितना केमिकल मैंने एड अप किया उतना ही इलेक्ट्रिसिटी बढ़ता जाएगा. अगर मैं NaCl का क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वांटिटी बढ़ते जाएगा. द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, है ना? ये तो कॉमन सेंस की बात है. देखो, अगर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl तुमने पानी में अगर डिसॉल्व किए तो हर एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl में एक NaHCl है. तो 100 मॉलिक्यूल्स जब तुम डालोगे तो वो डिसोसिएट होकर 100 एटम्स ऑफ Na, 100 आयन ऑफ Na बनेगा और 100 आयन ऑफ Cl बनेगा. तो जितना पॉजिटिव आयन बनता है उतना ही नेगेटिव आयन बनता है. ठीक है? Fine. So therefore, all the numbers are always same. So equilibrium is established between the unionized molecules and the ions produced. Okay. So there will be a time when NaCl will go on producing Na plus and Cl minus. And once the solution will become saturated, अब solution के अंदर और चार्ज रखने की कैपेसिटी नहीं है तो और आयन डिसोसिएट नहीं होगा. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब Na नॉर्मल स्टेट में भी है, NaCl, और NaCl आयनिक स्टेट में भी है इन Na plus and Cl minus फॉर्म. ठीक है? दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट. NaCl एक पॉइंट के बाद, देखो तुम सॉल्ट को पानी में मिक्स करते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि और मिक्स नहीं हो रहा है ना, सैचुरेशन पहुंच जाता है ना. तो सेम वैसा ही एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सॉल्ट और डिसोसिएट नहीं होगा. सॉल्ट तुम एक चम्मच डाले मिक्स हो गया, 2 चम्मच डाले मिक्स हो गया, तीसरा चम्मच मिक्स नहीं होगा, तीसरा चम्मच NaCl के फॉर्म में ही रह जाएगा. तो इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? व्हेन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल लाइक नॉर्मल NaCl एट मॉलिक्यूल is also present with ions produced. दोनों के बीच में अभी एक established हो गया इक्विलिब्रियम और दोनों अभी साथ में अपने वाटर के अंदर प्रेजेंट है. In non-electrolytes such as sugar solution, benzene, there is no ionization and hence only molecules are present. Okay, so therefore benzene है, sugar है, वो dissociate होगा ही नहीं, वो breakdown होगा ही नहीं. तो उसकी वजह से क्या है कि वो ionize ही नहीं होगा और only molecules are present. There is no ion present over here. ठीक है? और लास्ट क्या आता है? Degree of dissociation is the extent to which an electrolyte dissociates or breaks up into ions. Okay, like for example, अगर मैंने 100 molecules of NaCl डाला और 100 में से 100 का 100 अगर dissociate हो गया तो degree of dissociation is 1. उसका फॉर्मूला हम आगे देखेंगे. मतलब very high degree of dissociation, 100%. If I'm saying that out of NaCl 50 were dissociated and 50 remained, so degree of dissociation is how much? 50%. Okay, so degree of dissociation से मुझे ये मालूम पड़ता है कि मैंने जब उसको पानी में मिक्स किया तो कितना क्वांटिटी उसमें से डिसोसिएट हो रहा है. Okay, fine. So this theory, this entire points, you have to remember all the points. This is called as theory of electrolytic dissociation. This basically tells us that how dissociation takes place and what is the meaning of dissociation and everything. Basic definition. Okay. ये हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट में हम लोग के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस किए हम लोग ने. वी एग्जैक्टली डोंट फॉलो आरएनएस थियरी. देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन आरएनएस थियरी एंड द मॉडर्न कंसेप्ट. ओके, अब डिफरेंस क्या आता है? आरएनएस कंसेप्ट दैट वाटर आयोनाइजेस इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, पानी में कुछ भी चीज डालेंगे तो पानी आयोनाइज कर देता है. बट हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मॉडर्न कंसेप्ट ने क्या बताया कि मॉडर्न कंसेप्ट कंसीडर्स दैट इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयोनिक इवन इन सॉलिड स्टेट. अगर मैं सॉलिड स्टेट में भी देखूंगा, अगर NaCl सॉलिड स्टेट में भी मेरे पास है तो उसके अंदर भी Na इज पॉजिटिव एंड Cl इज नेगेटिव. आरएनएस ने क्या बोला कि
NaCl is generally neutral. Okay, it is not having any charge, but when you mix it in water, that charge is produced. But modern concept says that in solid form also charges are present, but because total number of negative charge is equal to total number of positive charge, hence we don't experience the charge. नमक को टच करते किसी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, तो ये डिफरेंस हो गया. आरएनएस ये बोलता है कि पानी में मिक्स करने के बाद चार्ज प्रोड्यूस होता है, बट मॉडर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि चार्ज पहले से ही था, सॉलिड स्टेट में भी था, लेकिन हम लोग को फील नहीं हो रहा था, लेकिन पानी में मिक्स करने के बाद वो चार्ज हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. And these ions, Na plus and Cl minus ions, are held by strong electrostatic force which make them immobile. So in solid form, they are held together. Na और Cl ने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जैसे कैसे मैग्नेट पकड़ के रखता है वैसे पकड़ के रख दिया है, तो इसकी वजह से दे आर इमोबाइल. इमोबाइल मीन्स दे आर अनेबल टू मूव. But when you mix it in water, this Na and Cl are now broken down and they are mobile. They can move in different places. Hence, in liquid form, they conduct electricity, but in solid form, they don't conduct electricity. And water is the main reason. Water renders these ions mobility by breaking the electrostatic force. Okay, तो ये डिफरेंस है आरएनएस और मॉडर्न थियरी में. ठीक है, बाकी आरएनएस ऑलमोस्ट तुम देखोगे तो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में सिर्फ एक डिफरेंस आ जाता है. ओके फाइन. हाँ तो अब्दुल्ला, लिसन, आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर ओवर हियर. Okay, remaining half of that particular chapter we'll do tomorrow. Okay, so continue for lecture 2.